स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Good evening everyone, welcome to the Study IQ IAS platform and I am here to help you with this agriculture optional subject. So आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि हमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. Like if you have started preparing for 2026 then you are in the biggest confusion right now that how we should proceed with this agriculture optional. So let's start. First we just have to look और आर सिलेबस कि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली कौन कौन से यूनिट्स हमारी कवर्ड है. अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली कौन कौन सी थीम्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है, देन इट विल बी ईजी फॉर अस दैट हाउ वी शुड प्रोसीड दैट. सो अगर हम देखें हमारे सिलेबस में दैट फर्स्ट इन एज यू ऑल नो इन योर UPSC you are having two paper 1 and paper 2. So your paper 1 is little bit on generic side, थोड़ा सा general है, बहुत ज़्यादा technical आपका नहीं है. And in the first paper you are having units like ecology, then agronomy, weed science, your forestry, soil science and nutrient management, then soil water management and conservation, agriculture extension and agriculture economics. So here in this ecology, this is completely related to the environment. Okay, environment, your natural resources, how do these agri inputs, जो आपके agri inputs हैं, how do these agri inputs impacting the environment. Okay, so you have to do all these things in this ecology unit. Then you are having the agronomy. In agronomy, you have to cover all the principles. As you all know what is agronomy. Agronomy is the basic science which deals with the crop production. ठीक है, जो आपकी crop production से deal करती है. So you have to read each and everything which is related to the crop production, like your cropping system, cropping pattern you have to do, crop rotation you have to do, what are the elements and factors necessary to grow a crop. Okay, so and how do you have to manage your field, how do you have to manage your nutrient, pest and each and everything which is required for growing a crop, you have to cover everything in this agronomy unit. Then weed science, आप crop grow कर रहे हैं, then there might be an unwanted plants, है ना, and they compete with our crops. जो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं उनके साथ compete करेंगे, and if they compete they will reduce their production. So in this you have to deal with that. Then forestry is वेरी एसेंशियल. हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली फॉरेस्ट्री से रहते हैं. देन your soil science and nutrient management, in this unit you have to read about the your soil formation, weathering, soil properties, physical, chemical structure, physical structure, your properties, physical, chemical, biological properties of the soil. Okay, then what are the nutrients present in the soil and what are the management practices क्या है आपकी soil की. Then nutrient है ना, आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं प्लांट्स के लिए, कौन कौन से एसेंशियल हैं, फंक्शन न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो देयर. सो यू हैव टू कवर दिस इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. देन सॉइल वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, वाटर इरिगेशन you have to do your conservation practices, rainwater harvesting, watershed management, all these will come in this particular unit. Then agriculture extension, your KVKs, है ना, SHGs. So how do these organization are helping, like what is agriculture extension, कि कैसे हम technological aspects और scientific aspects हम farmers तक पहुंचा रहे हैं. So how we are teaching the farmers. So all these things will come under this particular unit. Then you are having agriculture economics is there. Okay, so this is the syllabus of your paper 1. This is very brief. I have just taken the themes. It is more detailed. आप syllabus जब देखेंगे तो इनके सब parts आपको मिलेंगे and you have to prepare accordingly. Okay, then you are having paper 2. In your paper 2, अब जो paper 2 है, it's little bit of a technical thing. यहाँ पे थोड़ी सी bio के techniques आ जाएंगी. Biological technologies are more here in this particular paper. And in this paper 1, cell biology, plant genetics you are having. Then you are having plant breeding, cell biology. You have to read about the cells, their components, their functions, cell division like meiosis, mitosis you have to do. Then you have to do plant breeding. In plant breeding your heterosis is there.
अगर मैं शुरू से बात करूँ, योर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन different breeding technologies, your Mendel principles are also there. They will come in the genetics. ठीक है, यहाँ पे breeding technologies आपकी बहुत सारी आ जाएंगी, like heterosis is there, how you will breed a plant for your pest resistant, your drought resistant. So you have to read all these things in this particular unit. Then seed production and technology. Okay, your breeder seed, certified seed, what is the process of seed production? So all these comes under this particular unit. Then plant physiology. Plant physiology talks about all the functioning, all the metabolism happening in the plant, like your respiration is there, photosynthesis is there, your PS1, PS2, like photosystem 1, photosystem 2 is there. Okay, your Krebs cycle, C3, C4 and CAM plants are there. You have to read all the cycles here. ठीक है, आपको ये सारे processes यहाँ पढ़ने पड़ेंगे. Then horticulture and landscaping, कि how you are growing any of the horti plant, है ना, किसी भी fruit plant को आप grow करने के लिए आपको क्या क्या technologies चाहिए, what are the post harvest management, supply chain constraints क्या है, then landscape gardening, कि हम कैसे like you visit a garden, तो आप देखते हैं ना बहुत beautifully उसको arrange करके रखा हुआ होता है, तो how we have to design then a landscape, so you have to read that here. देन प्लांट प्रोटेक्शन, अब भाई आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, तो ऑब्वियस है देयर माइट बी अ पेस्ट अटैक, सो हाउ यू हैव टू डील विद द प्लांट डिजीज एंड योर पेस्ट एज वेल. देन द लास्ट वन इज योर फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कि आपने ग्रो तो कर दिया खाना, नाउ यू हाउ यू विल गोइंग टू फीड योर पॉपुलेशन, हाउ यू हैव टू मैनेज द फूड सिक्योरिटी इशू, न्यूट्रिशन को कैसे टेम करेंगे जो है. ठीक है, तो यू हैव टू डील विद these things in this particular unit. So this is your paper 2 and this is your paper 1. So this paper 2 is little bit of technological, a little bit on technological side. आपको थोड़ा सा यहाँ पे techniques पढ़नी पड़ेंगी. And here this paper 1, it's little bit generic and it is more related to your GS3 paper. आप जो GS3 पढ़ते हैं ये वहाँ से काफ़ी relate करता है, but optional subject है तो आप उतना generic नहीं रह सकते, आपको थोड़ा technology यहाँ पर लानी पड़ेंगी. ठीक है, then your paper 2 is there. इसका जो food production है, it is also related to your GS3 and lot of things are there which are overlapping with your GS syllabus as well. जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आप जानेंगे इसके बारे में. सो अगर मैं एक ब्रीफ आउटलाइन आपको दूं कि आपको कैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू द सिलेबस. आप सिलेबस देखिए, ठीक है, की पॉइंट्स नोट कीजिए एंड अंडरस्टैंड द थीम, कि क्या थीम है, उसका कोर एरिया क्या है, क्या वो जानना चाहता है आपसे. सिलेबस को देख करके आपने ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, यू हैव टू नोट डाउन. और अगर आप PYQ से सिलेबस को रिलेट करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि फ्रॉम ईच टॉपिक एंड सब टॉपिक देयर इज अ क्वेश्चन. आपका जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, यू नीड नॉट टू अपडेट इट एवरी टाइम व्हेन यू रीड इट. ठीक है, आपको हमेशा इसे करंट अफेयर से अपडेट नहीं करना है, यू नीड नॉट टू फोर्टिफाई इट. एक बार प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस एंड इट विल नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली. और फ्रीक्वेंटली क्या, इस स्टैटिक सब्जेक्ट में चेंज होने के लिए कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा आपका. सो सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है, इसके एक एक पॉइंट्स को बहुत ढंग से आपने पढ़ना है and you have to make a note of it. After that just go through the PYQs of 10 year, last 10 year के आप PYQs देखिए और relate कीजिए. जब आप PYQs को relate करेंगे syllabus से then you will find out कि there is a question on every point. आप एक syllabus का point लीजिए, आप वहीं से एक question बना लेंगे. ठीक है, like in I'll give you an example. Like in your paper 1 syllabus there is a heading कि what are the factors affecting the crop production, or like it's like that कि what are the climatic factors which are related to the cropping pattern or crop duration, ऐसा कुछ था, I forgot that particular line. So that is completely related to the factors affecting crop production. आप उस फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन का जो उन्होंने वहाँ दिया हुआ है सिलेबस में, वहाँ से आपका कंप्लीटली एक क्वेश्चन बन सकता है. और आया हुआ भी है, PYQs में है आपके कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. तो हेयर यू हैव टू डील विद द क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक एस्पेक्ट्स you have to deal, social aspects you have to deal. So these are the factors how
इट इज़ योर इम्पैक्टिंग द क्रॉप सेक्टर, ये आपके क्रॉप्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो PYQs को जब आप रिलेट करेंगे विद योर सिलेबस, यू विल फाइंड आउट कि हर एक जगह से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आया हुआ है, या तो किसी भी साल में, है ना। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 10 साल के PYQ, लास्ट 10 ईयर के PYQs बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। लाइक इफ़ यू आर टारगेटिंग 2026, तो ये टारगेट ले लीजिए कि यू हैव टू कवर द PYQs फ्रॉम 2015। देन जब PYQ समझ आ जाए, सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आ जाए, व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो अब मेहनत तो हर ऑप्शनल में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी अब आपने क्या करना है, मेक अ लिस्ट। लाइक इकोलॉजी यू हैव मेड, आपने इकोलॉजी लिखा, देन नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन, सेग्रीगेट कीजिए अब अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। लाइक इकोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन मेरे आए हुए हैं फ्रॉम 2015 टू 2025, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे आए हैं, नोट डाउन कीजिए उन क्वेश्चंस को। सिमिलर थिंग डू विद एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, न्यूट्रिएंट। सो इफ यू विल डू दैट, एक तो क्या होगा, आपके पास PYQs प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और जब आप खुद से करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स कि कौन से मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है जहाँ से UPSC हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड हाउ इट इज़ मॉडिफाइंग देयर क्वेश्चन, वो विद अकॉर्डिंग टू द टाइम हर साल। लाइक एज यू ऑल नो, UPSC इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, है ना। तो आप ये देखेंगे कि हर साल वो अपने क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। तो जैसे ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो चेंज बहुत ज़्यादा होगा नहीं, दे आर ओनली लायबल कि भाई आप क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दो, उसको मॉडिफाई कर दो, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको वो रिलेट करना है खुद से। जब आप PYQs प्रिपेयर करोगे, सेग्रीगेट करोगे, देन you will understand what it is, what UPSC is actually asking and what they want to know from your side, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले होना चाहिए। then you choose your resources wisely। अब बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, like I'll suggest you should read रेड्डी फॉर एग्रोनॉमी, समवन इज देयर, वो कहेगा कि आप अरुण कात्यायन पढ़ लो, बहुत शॉर्ट है और अच्छे से आराम से समझ आ जाएगी। थर्ड पर्सन ही मेट, ही सेड ही विल सेड कि यू शुड गो विद RS अग्रवाल, RS शर्मा पढ़ लो। तो दैट पर्सन की नहीं, इस पर्सन ने बोला है ये बुक बहुत अच्छी है, आई विल गो विद दैट, इस पर्सन ने ये बुक कही है, मैं इसके लिए। तो यू विल नेवर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस विद दिस स्ट्रैटेजी कि भाई जिसने जो बोला है वही आपने बुक परचेज कर ली। यू विल जस्ट एंड अप विद अ पाइल ऑफ बुक्स, आपके पास बुक्स का स्टैक लग जाएगा, प्रिपरेशन कुछ नहीं होगी, रिवीजन कुछ नहीं होगी, एंड यू विल एंड अप विद अ जीरो, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी योर स्ट्रेटेजी, एज आई वॉज लिटिल ब्लंट विद दैट, बट ये आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली, आपने बहुत वाइजली अपने रिसोर्स को चूज करना है। एंड व्हेन यू हैव चूज योर रिसोर्स, देन यू शुड हैव 110% फेथ ऑन योर रिसोर्स। आपके रिसोर्स पर आपको पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए कि आई have trusted this and this will not going to betray me, ठीक है। जब आप मल्टीपल रिवीजन उस लाइक आपने कोई भी रिसोर्स फॉलो किया, सबसे पहले तो वाइजली करना है कि भाई मेरा इसमें से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि नहीं होंगी। देन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, देन चीज़ें दिमाग में क्लियर होने लग जाएगी, तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और आपने ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कल को मैं आके बोलूँ यू शुड गो विद दिस बुक एंड यू विल लाइक कि मेरी 3 महीने की प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, मैंने ये बुक पढ़ी है, छोड़ दो इस बुक को, आई विल परचेज दिस नेक्स्ट बुक। नो, दिस शुड नॉट बी देयर। आप ऐसा करेंगे तो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। फॉलो योर रिसोर्स वाइजली, फॉलो ओनली वन रिसोर्स, ठीक है। एक चीज के लिए एक रिसोर्स फॉलो कीजिए, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट के लिए आपकी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करूँ। यू विल एंड अप विद अ कंफ्यूजन एंड यू विल एंड अप विद जीरो, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे आप। Then try to complete your syllabus in 5 to 6 months. Like this is the high time. If you have started your preparation from this June month or you are going to start from the July, then try to end up with the November or December. उससे ज़्यादा ऑप्शनल नहीं खींचना है, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट डेडलाइन कि मुझे नवंबर और दिसंबर तक मेरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट, ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट रिवाइज इट मल्टीपल टाइम एंड डू द
आंसर राइटिंग. दिस विल बी योर स्ट्रेटेजी है. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ. वैसे तो मैंने बहुत इलेबोरेट कर दिया, बट स्टिल लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पिन पॉइंट देयर. आपको हर एक चीज़ को समझना है यहाँ पे. जैसे अगर यहाँ देखें, लाइक package of like your concepts of various cropping system is there. Like there is a question I was telling about you, the factors affecting crop production, impact of high yielding and short duration varieties on shift in cropping pattern. ये like जो आपकी हाई यील्डिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप पैटर्न पे. लाइक ना अभी बहुत टेक्नोलॉजिकल में नहीं जाती हूँ, ये आपका टेक्नोलॉजी आपकी कोर्स सिलेबस की क्लास नहीं है, बट थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो लाइक योर हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ वो होती है लाइक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आपका बहुत कम टाइम विंडो बच जाता है एक फार्मर के पास क्रॉप ग्रो करने के लिए. तो लाइक बारिश हुई, फार्मर टाइम से सो नहीं कर पाया तो उसने डिले की सोई. अब डिले की सिमिलर अगर वो प्रीवियस वाली वैरायटी को ग्रो कर रहा है, दैट इज़ नॉट शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग टाइम भी इंक्रीज होगा, राइपनिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा. तो वी हैव क्रिएटेड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी कि लाइक अ फार्मर के पास सिर्फ 3 महीने का विंडो है तो ही कैन ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप इन दैट 3 मंथ ओनली. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट डिटेल. तो इस तरीके से आपने ये एक एक चीज़ को पढ़ना है, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली पुट हो सकते हैं. लाइक दिस इज योर रिमोट सेंसिंग, सो द question can be asked to you, what are the application of remote sensing in agriculture sector? Okay. Like weeds and their characteristics, dissemination, association with various crop. So they have a lot of time ask the question, what are the weeds associated with the wheat crop, and how we are going to reduce that weed population, है ना, how we have to tame that weed. So कैसे आपने conserve reduce करनी है weed population को. So these are the factor they have asked there. ठीक है, किसी भी क्रॉप से रिलेटेड पूछ सकते हैं आपको, वीड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू व्हाट आर द क्लासिफिकेशन. सो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट, बहुत अच्छे से समझना है. देन यू हैव टू प्रोसीड कि आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करने हैं. ओके, देन PYQ 10 years, लास्ट 10 years के मस्ट हैं, लाइक 2015 से 2025 तक आप कीजिए. देन नोइंग द पैटर्न, आप क्यों करने हैं, ताकि आपको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोर एरियाज समझ में आ जाए, थीम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सो यू हैव टू डू दैट नाउ. ठीक है, आपने ये बहुत अच्छे से करना है कि कई बार मैंने रिपीट कर लिया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न हेयर. देन बुक्स टू बी फॉलोड, ये थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. और इतनी सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स एज वेल, जो स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए हमने डिज़ाइन किया है. एंड वी फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ये हमारी आप ऐप पे या वेबसाइट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दिस यू कैन यूज़ हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय ICR. यहाँ से आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो जाएंगी एंड यू विल गेट सम केस स्टडीज़ के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसमें से कि कौन से रीजन में कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी या कोई सीड इंप्लीमेंट की थी. दैट विल हेल्प यू इन फोर्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर्स, कि आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को फोर्टिफाई कर पाएंगे. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दैट. नाउ इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, VK Vyas और प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी. पर्सनली दिस इज माय फेवरेट बुक बाय रेड्डी एंड रेड्डी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी. अगर आप इस बुक को ही सिर्फ थॉरली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, देन इट विल गोइंग टू कवर योर 80% सिलेबस फॉर योर पेपर 1. लाइक इसके एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी बुक है. लाइक दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बुक. ठीक है, आई कैन गो थ्रू विद दिस बुक ब्लाइंडली. आप इस बुक के कंटेंट को देखिए, आंसर लिखिए एंड योर PYQs. आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है पेपर 1 के लिए. कुछ एक टॉपिक्स इसमें मिसिंग है अबाउट योर एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन इज मिसिंग, फॉरेस्ट्री इज मिसिंग. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 80% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड फ्रॉम हियर. और इसके अलावा आपने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द एक्सीलेंट ऑफ एक्सीलेंट बुक.
देन योर सॉइल साइंस के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं देन यू कैन गो विद द DK बसु, देन हॉर्टिकल्चर N कुमार। प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप BD सिंह या फुंदन सिंह की बुक यूज़ कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड फुंदन सिंह। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी VK जैन यू कैन गो। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स BD सिंह। Applied entomology KP Srivastav, and for seed science you can refer RL Agarwal. And apart from these resources you can visit ICR website and TNAU website. ठीक है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आप बुक फॉलोज वेबसाइट रेगुलरली फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी PDF नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट विद दीज बुक्स लाइक बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी बुक ही पढ़नी है। यू ओनली हैव टू डू द थीम्स विच आर इन सिलेबस। आपका जो सिलेबस में मेंशन आपने सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो लाइक ये अगर आपकी कंप्लीट बुक है ना, तो यू हैव टू जस्ट कवर 30 to 40% फ्रॉम ईच एंड एवरी बुक। 30-40 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लाइक 10-20%, ठीक है। एंड इफ़ you are really preparing for agriculture optional, and if you are watching this video then you might be preparing for this and you are like आप सीरियस होंगे इसके लिए। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन प्लीज परचेज दिस बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। ब्लू कलर की एक बुक है, ठीक है। सो ये बुक आप सभी परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। देन व्हाट आर द टिप्स? अब सिलेबस PYQ बुक्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर नॉन एग्री और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, अगर आप साइंस से बैकग्राउंड स्टूडेंट नहीं है, आपने बायो कभी नहीं पढ़ी है, सो गो विद द बेसिक्स फर्स्ट। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज टर्मिनोलॉजीज़। अगर आप टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ पाएंगे तो चीज़ें फिर मुश्किल होंगी, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट। लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल, लाइक क्रॉपिंग सिस्टम इज देयर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इज देयर। अब बहुत बच्चे जो हैं वो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम इज इन अ कंप्लीट सिस्टम, ये एक पूरा सिस्टम है टू ग्रो अ क्रॉप। यहाँ पर क्रॉप ग्रो करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सीड बेड। आपने सीड बेड प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर फील्ड, यू हैव टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, है ना, वाटर मैनेज करना है, यू हैव टू डू द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यू हैव टू डू द पेस्ट मैनेजमेंट, यू हैव टू डू द वीड मैनेजमेंट, you have to do the proper intercropping practices. After that you have to do the harvesting as well, that should be proper, and at the last you get a harvest which you need to sell in the market. So it's in a complete system. If any of the component is missed, like आपने सब कुछ high yielding variety seed purchase की, आपने water अच्छा दिया, आपने seed bed बहुत अच्छा prepare किया, you have do the nutrient management as well, you did your pest management as well, but you forgot to do the weed management. आपने वीड मैनेजमेंट नहीं किया, बहुत ज़्यादा वीड हो गई एंड दे कम्पीटेड विद द क्रॉप, और इससे क्या हुआ, आपका फाइनल प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। सो योर सिस्टम इज ब्रेक्ड, आपका सिस्टम ब्रेक हो गया। सो दिस इज अ क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न को अगर मैं एक बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि the number of a crop grown in a particular field at a given time period in a given space. अब ये बहुत टेक्निकल हो गई समझने में कि गिवन स्पेस गिवन टाइम, तो बहुत आराम से आपको समझाती हूँ। लाइक यू वियर शर्ट्स, आप शर्ट्स पहनते हो, तो किसी की प्लेन शर्ट है, यू आर हैविंग समवन इज हैविंग फ्लोरल पैटर्न, किसी के जिगजैग पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैटर्न कि एक गिवन जगह पर एक गिवन टाइम पीरियड में एक फार्मर ने अपनी फील्ड में कैसे क्या चीज़ें ग्रो की हुई है और वो कैसी दिखाई दे रही है। लाइक ईच एंड एवरी क्रॉप हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, उसके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। तो लाइक अ फार्मर इज हैविंग 2 हेक्टेयर लैंड और उसने अपनी 2 हेक्टेयर लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन वन ही हैव ग्रोन टोमेटो, इन वन ही हैव ग्रोन राइस, in one he have grown your cucumber, और एक को उसने लेफ्ट कर दिया। and there is another farmer who is having 2 hectare land and in complete 2 hectare land he have grown rice, ठीक है। so देखो दोनों का पैटर्न डिफरेंट दिखाई देगा,
सिमिलर टू हेक्टेयर लैंड है, गिवन टाइम पीरियड है, सेम टाइम पीरियड है, बट पैटर्न इज डिफरेंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम. तो बहुत बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर आंसर भी गलत लिख के आएंगे. तो यू हैव टू कवर द बेसिक फर्स्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज एक बार समझ आ गई तो बस फिर यू आर गुड टू गो, कि आप उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बाकी सब चीज़ें बहुत ईजिली समझ लोगे, इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको. देन फॉलो द बेसिक बुक्स. बेसिक बुक्स आपने फॉलो करनी है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है. बेसिक बुक्स या फिर आपने जो कोचिंग परचेज किया है, यू कैन ट्रस्ट दैट. एंड रिसोर्स, चूज योर रिसोर्स वाइजली. दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि आपने क्यों करना है. देन रिलेवेंट रिसोर्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम. अब आपने बेसिक बुक्स फॉलो कर ली, अब आपने क्या करना है. व्हेन यू हैव अंडरस्टैंड एक पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहली बार बुक पढ़ना लगता है, साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, चाहे उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो. क्रॉपिंग बुक से देखा, क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन लिख ली, क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है. ऐसे क्या करते हैं, दे विल एंड अप विद अ बल्की नोट्स, बहुत बल्की, एक दूसरी किताब की किताब लिख लेते हैं. सो दिस शुड नॉट बी योर स्ट्रैटेजी. व्हाट यू शुड डू, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, व्हाट यू शुड डू कि आप पहले बुक उठाइए, उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए, थॉरली एक बार पढ़ लीजिए कि भाई है क्या इस चीज़ में, ठीक है. जल्दी ऊपर से चीज़ें समझिए. फिर जो आप जब आप एक बार पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, व्हेन यू आर रीडिंग दैट थिंग, एक बार आपने ऊपर से देख लिया. अगर ऊपर से नहीं देखना है तो व्हाट यू कैन डू कि आप पहले बुक उठाइए, अपनी बुक को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझिए, अपनी बुक में ही पिन पॉइंट मार्क कर लीजिए और गो विद द बेसिक्स. आपने बहुत अच्छे से उसके बेसिक्स को समझना है कि क्या है. एंड कीप योर सिलेबस एंड PYQs अलॉन्ग विद यू कि आपने क्या पढ़ना है, क्या आपने छोड़ना है. यू शुड बी वेरी वाइज. आजकल दिस इज नॉट द टाइम ऑफ हार्ड वर्क, दिस इज अ टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क. एक बच्चा है 10 बुक पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है, लाइक सुबह से शाम तक लगा हुआ है. देयर इज अनदर स्टूडेंट हु रीड ओनली फॉर 5 hours एंड ही नोज कि विच थिंग ही हैव टू रीड एंड विच ही हैव टू लेफ्ट. उसे पता है ही विल बी सेलेक्टेड, बिकॉज हार्ड वर्क तो हम सभी करते हैं. अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे पढ़ना क्या है, देन आई विल एंड अप विद मगिंग लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे रिलेवेंट की ही नहीं होंगी. सो यू शुड नॉट डू दैट. व्हाट यू शुड डू, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन. और जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फेथ रखिए, चीज़ों को बहुत ढंग से समझिए, ठीक है. एंड देन नोट डाउन कीजिए और क्या आपके PYQs और सिलेबस में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, सिर्फ वही आपने करना है. फालतू का आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी. नाउ as I have told you, you should cover your syllabus in 5 to 6 months. Now make your pinpointed notes. अब जब second reading आप लेंगे, first reading में notes नहीं बनाने हैं. I suggest to everyone, when you are going to read your the book for the second time, जब आप दूसरी बार अपनी book पढ़ रहे हो, then start making your notes. अपने notes बनाइए and your notes should be pinpointed notes होने चाहिए. बहुत बल्कि notes नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि दूसरी की दूसरी book ही लिख दी है, ठीक है. दिस शुड नॉट बी देयर. आप पिन पॉइंटेड नोट्स बनाइए ताकि आपके रिवीजन के लिए इजी हो. एंड फोर्टिफाई योर नोट्स विद अ डायग्राम, ठीक है. डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स उसमें बनाइए, ठीक है. जितने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उतने ही आपके कंसाइज नोट्स होंगे एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे. आफ्टर दैट when you are doing done with this, when you are doing the revision, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, I suggest make mind maps for each topic. एक टॉपिक का, टॉपिक इन द सेंस एक टर्मिनोलॉजी के माइंड मैप बना, लाइक इकोलॉजी इज देयर. उस इकोलॉजी के उस 2 से 3 पेज में कंप्लीट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, लाइक इट्स द डे फॉर योर ऑप्शनल एग्जाम एंड यू आर जस्ट हैविंग लाइक 2 or 3 days, तो आप उन 2 से 3 दिन में वो सारा का सारा कुछ रिवाइज कर सके और आपने जो 5 से 6 महीने में जो प्रिपरेशन की थी, जो पढ़ा था, वो सब आपके सामने क्लियर हो जाए. तो माइंड मैप्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने एंड यू शुड प्रिपेयर दैट. एंड फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि रिवीजन फिर डिफिकल्ट हो जाता है, सो दैट शुड यू शुड डू दैट. फ्लो चार्ट और डायग्राम इज अ नेसेसिटी, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। और अगर आप नोट्स में ही फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बनाने की हैबिट डाल लेंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल एंड इट विल डेवलप अ हैबिट इन यू दैट व्हेन यू आर डूइंग द आंसर राइटिंग, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे देन यू आर एबल टू ड्रॉ द डायग्राम इन दैट। आप वहाँ पे भी बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। एंड यू ऑल नो कि जब हमारा आंसर इतना बढ़िया होगा तो यूपीएससी इज गोइंग टू रिवॉर्ड अस। ठीक है ना। पता है जब आप मेंस लिखते हैं, यू आर कंपीटिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हु हैव रियली प्रिपेयर्ड हार्ड, बहुत अच्छे से जिसने प्रिपेयर किया है। अब सबकी आंसर राइटिंग एक्सीलेंट है, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल गेट रिवार्डेड, कि आपने कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है, कितना जिस टाइम हम आंसर लिखते हैं ना तो हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है कि मैंने ये डायग्राम डालना है, ये मैंने फ्लो चार्ट डालना है, नहीं रहता है। वो आपकी प्रैक्टिस जो है ना 5-6 महीनों की या 1 साल की, वो आपको हेल्प करती है इन दैट आंसर राइटिंग, कि आपने कैसे अपने आंसर्स को लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से लिखना शुरू की है, देन वो आपकी डेफिनेटली वही चीज़ बिल्ड हो जाएगी एंड योर माइंड वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ही विल राइट एन आंसर सिमिलर like you are writing at your home। ठीक है। तो ये आपने हैबिट पहले से डेवलप करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरा जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन मैं सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा कलरफुल पेन से, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इन 3 आवर ना यू विल नॉट गेट टाइम टू ड्रॉ दैट मच ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल डायग्राम, और सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है उसमें। ठीक है। सो आंसर राइटिंग, अब बहुत बच्चे क्या है कि आज ही मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया है, मैं आज से ही आंसर राइटिंग लिखना शुरू करूंगा, मैं आज ही 2 आंसर लिखूंगा। भाई पहले सिलेबस समझ लो, पहले चीज़ों को समझ लो, एक बार आप पढ़ो, नोट्स बनाओ, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जब आपकी सारी यूनिट प्रिपेयर हो जाए, लाइक राइटिंग एन आंसर फॉर यूपीएससी, इट्स नॉट लाइक दैट केक ऑफ पीस ऑफ केक ना, आपको बहुत चीज़ों से उसे फोर्टिफाई करना है। एंड फॉर फोर्टिफाई योर आंसर विद लॉट ऑफ थिंग्स, योर सिलेबस नीड्स टू बी कंप्लीटेड। एंड इन पेपर व्हेन एज आई हैव टोल्ड यू इट्स लिटिल बिट अ जेनरिक पेपर, लाइक एक्सटेंशन इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना जो करंट में आपकी कुछ स्कीम्स चल रही होंगी, सो यू हैव टू फोर्टिफाई योर आंसर विद दैट। कहीं पे फोर्टिफाई कर दो उसको कि आपने लाइक एक्सटेंशन के लिए आपने एग्जाम्पल लिखा कि भाई गवर्नमेंट, दिस इज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो कि लाइक गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एसएचजीज, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग योर केवीकेज, कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम का नाम डाल दिया, याद आ गया तो ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फोर्टिफाई योर आंसर। तो अपने ऐसा नहीं है कि आज ही पढ़ा है आज ही आंसर लिखना है। ठीक है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लाइक यू हैव रीड कि व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम, यू हैव रीड दिस, और इसी पे एक आंसर लिख लिया, फालतू का नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी पे आप लिख सकते हो। अगर आपने लिखना है कि नहीं मैं तो आज से ही आंसर लिखूंगा, ऐसा नहीं है पढ़ा आपने क्रॉपिंग सिस्टम, आंसर लिख रहे हो हॉर्टिकल्चर पे, दिस शुड नॉट बी देयर। ओके, नाउ रिवीजन, रिवाइज योर टॉपिक मल्टीपल टाइम, जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। रिवीजन इज द की फॉर योर सिलेक्शन। आपने प्रिपरेशन कर ली, नोट्स बना लिए, देन यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स। इसके साथ कोई भी लीनियंसी नहीं, रिवीजन के साथ। तो बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। या फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, चीज़ें याद नहीं होती, लिख लिख के याद कीजिए एंड थ्रू इट। एक पेज लीजिए, लिख के याद कीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है। सो आप इस तरीके से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। एंड रिवीजन शुड नॉट बी मिस। और सिलेबस में जब आप सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को, एक चीज़ में पॉइंट बताना भूल गई, जब आप देखेंगे यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन विच इनपुट इज़ वेरी हाई, आउटपुट इज़ वेरी लेस। मतलब कि आपने पढ़ना बहुत ज़्यादा है, लिखना बहुत कम है, या उसमें से आता बहुत कम है। लाइक योर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, ये जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं फॉर योर क्रॉप्स, योर ऑयल सीड, योर सीरियल्स एंड फिर सिमिलर थिंग आपकी हॉर्टिकल्चर के लिए, इट्स वेरी लेंदी एंड वास्ट। ये बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो बहुत बच्चे क्या करेंगे, उसी में लग जाते हैं, और क्वेश्चन इसमें से एक आता है, कई बार आता भी नहीं है। लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years तो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक आई हैवंट सीन लाइक 21-22 में कोई क्वेश्चन नहीं था, एंड इफ द क्वेश्चन वाज देयर, वो चॉइसेस के बेस पे आ जाता है कि ना 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने। सो वन थिंग शुड बी देयर, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ उस टॉपिक को स्किप कर दो, आई वाज सेइंग कि वो टॉपिक कीजिए बट इंटेलिजेंटली कीजिए। एक तो पीवाईक्यूज में जो जो पूछा है वो करना है, एंड द मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप, मैंने एक चीज़ विजुअलाइज की है, लाइक द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जिस क्रॉप का पूछा जा रहा है, दैट क्रॉप वाज इन न्यूज़ फ्रॉम दैट
प्रीवियस लास्ट टाइम से ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो चीज़, ठीक है, या गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए कुछ कर रही होती है. सो इफ़ दैट वाज इन न्यूज़, उसको मिस मत कीजिए. लाइक ग्राउंड नट इज देयर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ग्राउंड नट बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट्स आर ऑल्सो देयर, तो किसी एक मिलेट की पूछ लेंगे आपसे, ग्राउंड नट का पूछ लिया. चिकपीस का, पल्सेस को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, एंड दे वांट मेक अस सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, है ना, कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो पल्सेस का, फार्मर्स ग्रो करना शुरू करे पल्सेस. तो आप देखेंगे पिछले कुछ साल से पल्सेस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है. कभी ये क्वेश्चन है कि वाई देयर इज अ लेस प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया, क्यों है कम, ठीक है, वाई आर फार्मर विलिंग टू सीरियल्स अपार्ट फ्रॉम योर पल्सेस इवन आफ्टर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है. सो और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लाइक ग्राम का पूछा गया था आपसे, चिकपी का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपसे पूछा गया. सो जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती ना, तो आपको न्यूज़ से थोड़ा सा रिलेट रहना पड़ेगा. लाइक करंट अफेयर यू आर डूइंग रेगुलरली ना फॉर योर यूपीएससी, तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है. तो उसी तरीके से आपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने वहाँ से करनी है, एंड नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स जो आप अपने फोर्टिफाई कर सके आंसर के लिए अपने करंट अफेयर सेक्शन से. रेस्ट ये बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. आंसर्स थोड़े टेक्नोलॉजिकल होने चाहिए, ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, ताकि आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सके. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. फिर मिलेंगे. बाय बाय. टेक केयर. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.